Bhuvneshwar, just wondering, with the amount of swing that you've been getting in these T20 games, at this stage of your career, do you feel like you're just employing the swing better, or are you being able to swing it more and for longer periods of time with the white ball? Honestly, I don't know that because I've been here quite a few times and it didn't swing in the last few series I've played here. So yes, even I was a bit surprised that white ball is swinging and it's swinging for a long period of time, especially in T20 format, and there's a bit more bounce in the wicket as well. So yes, when ball swings, you enjoy more. So, but honestly, I don't know that whether I'm swinging it some condition or it's a ball. But yes, I'm glad it's swinging. There was a time in your career where you were struggling with injuries for a bit. Was there a point where you thought that might be it for you, or were you always confident of making the comeback that you have? I never thought that was it for me, but yes, I was working with the physios, trainers, and doing my thing. And of course, when you are out of the game, you're never confident. You just feel a bit frustrated or disappointed, but you want to come back. And luckily, I came back and playing for India again. Rohit, since the injuries have hampered your career and limited your opportunities, now that you are fit and bowling and excellent speed also you have got, do you see yourself going for red ball cricket or getting opportunity in test matches also? So honestly, I'm not thinking about anything at this moment. I mean, I've been playing for a few years for India now, and I'm at a stage that whatever the opportunities I'm getting, I'm just trying to do well in that. So if I'll get any opportunities in the Red Bull in the future, I mean, I wouldn't say no, but yes, I'll try to do well there as well. But I'm not thinking that whether I'll get those opportunities or not. Bhuvi, 2-0 up. Did you expect that India will be able to do it that quickly, that smoothly? Look, when you go for any series, you always imagine that you'll win. And I mean, if you ask few of our guys, we may have imagined 3-0. I mean, I'm not saying if we could do that or we could have done that, but yes, we are not surprised at all that it's 2-0. I mean, we did a hard work. We played good cricket, and cricket is a funny game. They could have 2-0, but we are in that stage, and all credit to the team that we have played. I mean, all the 11 guys. Yes. Bhuvi, with you coming back to form and also Hardik bowling now regularly, does it augur well for India moving to the lead up to the World Cup, T20 World Cup? Look, it's a team thing. I mean, I'm not someone who can comment on this. I mean, players can change, combination can change, but yes, as far as the individual is concerned, I'm pretty happy that the way I'm bowling. Of course, Hardik is coming back again after he missed few series. That of course, as an individual, if we both are happy that we are contributing to the team's win. भुवी, जैसे बैट्समैन के लिए बोला जाता है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, आज बॉलर की हैसियत से क्या सोच विकेट लेने की? नहीं, बिल्कुल, अगर स्विंग होती है जो मेरी स्ट्रेंथ है तो मैं अटैक करने जाता हूँ. अगर आपने देखा होगा बैट्समैन अटैक करते हैं जब फ्लैट विकेट होता है तो वो अपने जो भी शॉट्स होते हैं खेलते हैं, बट इन दोनों मैचेस में बॉल स्विंग हुई तो मेरा जो स्ट्रेंथ है मैं उस पर अटैक करने गया, और जब स्विंग होती है और अटैक करते हैं तो विकेट मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो दोनों मैचेस में वही हुआ. और दूसरी बात, जब स्विंग होता है तो दिल काबू में रखना कितना ज़रूरी होता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो मन करता है कि एक बॉल अंदर, एक बॉल बाहर, एक बॉल अंदर, तो वो कंट्रोल करना थोड़ा ज़रूरी होता है. अगर एक कंसिस्टेंटली एक लाइन पे डालनी है, बैट्समैन को सेटअप करना है. वो भी सबसे पहले तो बेहतरीन गेंदबाजी, और मैं पूछूंगा ऐसा क्या है कि आप बिल्कुल सेट हो के आते हैं? आमतौर पर होता है ना कि गेंदबाज पहले 2-4 बॉल वार्म अप के लगते हैं, लेकिन आप तो आते ही पहली गेंद बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से और विकेट भी निकाला देता है. इन स्विंग डाला आपने पिछले मैच में बटलर को आउट किया और इस मैच में जेसन रॉय को आउट किया. मतलब क्या है कि आपकी गेंदबाजी पहले बॉल से आप बिल्कुल सेट लगते हो? नहीं, करनी पड़ती है. अगर 3-4 बॉल पे वार्म अप करेंगे, चौके पड़ जाएंगे तो कोच और कप्तान दोनों आपको पता है क्या बोलने वाले हैं. तो उससे पहले हम लोग वार्म अप करते हैं कोशिश करने की. बट हाँ, T20 इतना छोटा फॉर्मेट है, अगर 1-2 बॉल भी बाउंड्रीज लगती हैं, बट अगर 1-2 बॉल में बाउंड्रीज लगी कि आप वार्म अप नहीं है, तो आई थिंक दैट इज़ नॉट फेयर फॉर टीम और मी एज वेल. तो कोशिश करते हैं कि पहली बॉल से ही वार्म अप रहें, या जहाँ बॉल डालना चाहते हैं वहाँ डालें. और अगर अभी तीसरे मैच की बात करें जो बिल्कुल कल ही है, बिल्कुल भी गैप नहीं है, मगर अब 3-0 से बिल्कुल धराशायी करना चाहेंगे, या फिर कोई इंडियन टीम में भी कोई नया कॉम्बिनेशन किसी यंगस्टर को ट्राई करना है, कुछ कर सकते? वर्ल्ड कप भी है ध्यान में. ये मैं नहीं बोल सकता कि क्या करना चाहेंगे, बट हाँ, इंग्लैंड में आने के बाद 3-0 अगर हराएंगे तो ऑफकोर्स अच्छा रहेगा.
वो भी जब इंडियन टीम की इनिंग्स फिनिश हुई तो ऐसा लग रहा था, कई जो लोकल जो एक कमेंटेटर को सुन रहा था उन्होंने कहा कि स्कोर थोड़ा सा कम है, जिस तरह का इंडिया का स्टार्ट रहा था। एज ए बॉलर जब आप जा रहे थे कि आपको भी फील हुआ था कि नहीं थोड़ा सा कम है, मेरे को स्टार्ट देना है कम से कम न्यू बॉलर्स को? नहीं, T20 में अगर आप देखेंगे बोल सकते हैं कम स्कोर था 170, बट 170 180 हमेशा ट्रिकी स्कोर होता है, चाहे वो फ्लैट विकेट हो चाहे बॉलिंग सपोर्टिंग हो, क्योंकि दूसरी टीम को ये नहीं पता होता कि किस पेस से जाना है। अगर उन्हें अच्छा स्टार्ट मिला तो उनके लिए अच्छा है, अगर एज ए बॉलिंग टीम हमें अच्छा स्टार्ट मिला तो हम उन लोगों पे थोड़ा दबाव डाल सकते हैं, तो वही चीज़ें होती हैं। बट जब हम बॉलिंग करने जाते हैं दिमाग में रहता है कि जब पावर प्ले में विकेट लेंगे तो कोशिश यही रहती है कि उनका रन रेट ऊपर जाए, फिर वो लोग प्रेशर में आए, और लकीली दोनों मैचेस में यही हुआ। लास्ट मैच में फिर भी ऑलमोस्ट 200 रन थे हमारे, बट आज कोशिश ये थी कि अगर बॉल स्विंग होगी तो हम विकेट लेने ही जाएंगे। आज एक पूछ रहा जब इंडियन टीम बॉलिंग कर रही थी, एक बार चेंजेस हो रहे थे तो किसी ने कहा कि भाई इस इंडियन बॉलिंग अटैक में सबसे वीक बॉलर कौन है, ढूंढो, तो वो ढूंढ नहीं पा रहे थे। ये आपको लग रहा है कि द बेस्ट कॉम्बिनेशन है अगर बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें? नहीं सर, एक मैच में अगर मार पड़ गई तो आप ही वीक बॉलर ढूंढेंगे, तो वो आप अगले मैच में ढूंढ लेना। वो भी एक रोल जो आपके इस टीम में है कि स्विंग बॉलिंग, मेनली के न्यू बॉल से विकेट लेना। तो T20 क्रिकेट में हम देखते हैं बहुत सारे टीम जो है एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं, कहीं न्यू बॉल से स्पिनर डाल दिया, कोई और हो गया। तो ये जो स्विंग बॉलिंग है, जो ट्रेडिशनल न्यू बॉल से बॉलिंग है, इसका T20 क्रिकेट में क्या रोल आप देखते हैं? नहीं, जो आपने बात बोली कि स्पिनर्स आते हैं, कुछ आते हैं, वो बिल्कुल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। बट जैसे मैंने फर्स्ट ओवर डाला, बॉल स्विंग हुआ, तो कैप्टन को पता है कि बॉल स्विंग हो रहा है, वो फास्ट बॉलर से अटैक कर सकते हैं। बट अगर नहीं हो रहा है तो वो चेंजेस करते हैं। तो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कंडीशन कैसी है, पोजीशन क्या है। बट हाँ, अगर स्विंग हो रहा है तो एज ए फास्ट बॉलर के लिए उससे अच्छा कुछ नहीं है, स्पेशली इस फॉर्मेट में, क्योंकि छोटा फॉर्मेट है, सब लोगों को बाउंड्रीज देखना पसंद है। बट जब स्विंग होती है तो ऑफकोर्स फास्ट बॉलर्स को पसंद आता है बॉलिंग करना। वो भी एक चीज़ पर्सनली आपसे पूछना चाह रहे थे, कुछ महीने पहले तक जैसे फॉर्म इंजरी आप वापस आए, बहुत तरह के सवाल थे, बहुत सारे ऑप्शंस भी थे, लेकिन जिस तरह से आपने कमबैक अभी किया, इसके पीछे मतलब आपको कभी डाउट था अपने पर, या आपको लग रहा था कि नहीं मैं जब भी आऊँगा जिस पोजीशन में हूँ मैं करूँगा, मैं सीनियर बॉलर हूँ इस टीम का, मुझे प्रॉब्लम नहीं है? उसके बारे में बताएं, जिस तरह से आपका स्ट्रगल रहा। नहीं, इंजरी के बाद पता है कि अगर वापस आना है तो अच्छा करना है, उसका कोई आई थिंक ऑप्शन नहीं है। तो मुझे ये था कि मुझे अभी भी मौका मिलेगा, जब भी मैं मैचेस खेलने को मिलेगा तो अपनी तरफ से 100% दूंगा। बट कोई गारंटी नहीं होती कि आप अच्छा करेंगे, क्योंकि जब इंजरी होती है तो आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, जैसे मैंने बोला कि डिसअपॉइंटमेंट रहती है, कहीं ना कहीं डाउट नहीं होते, बट एक मेंटली आप उस अच्छी पोजीशन में नहीं होते। बट आप हमेशा सोचते हैं कि जब मैं वापस जाऊंगा तो अच्छा करूंगा या करना है। तो लकीली मुझे वापस चांस मिला, अच्छा भी किया। तो ऑफ कोर्स जिस तरीके से मैनेजमेंट ने मुझे बैक किया, कैप्टन ने, कोच ने, तो अच्छा है कि अगर उन्होंने बैक किया और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा कि हमने इसे बैक किया और इस परफॉर्मिंग।